In last lecture, we discussed about this pull down menu, then selection. This type of attribute like button, input type button, then form text area. We have discussed this all in detail with example. Today we'll discuss about uh, that we call selection option is there. What we call selection option is there. Okay, so today is basic. Is the audible? Yes, sir. Okay, we'll start now. Basically, in last lecture we have discussed about how to create a forms, okay, and how we can design input form, input type like a text, input type as a button, input type as a radio button, okay, input type as a text area. Okay, today we'll discuss about uh, input type as a selection. So that we call pull down menu also. So the tag for it is selection name, the team, and the options are this. Okay, so we'll create a selection list for it. Start it. I will just remove it some. Mm, okay, this is our last lecture, input type selection. Okay, look at here. The selection name is car and ID is car. Okay, and options are this. Like here, options are dog. The option selection name car, then ID is car. Option values are Volvo, then Volvo will show it. Just you have to pick the value. Then selection list is close here. Okay. Then BR. Then input type submit. I just clear this input type submit, and again. And this is for input type reset. Look at here. I have selected some. What is your pin? Last lecture we are do it. I will ask a question here. Which car you like? Okay. Then selection list name ID. Then option value was just mute it. Hello. Pradnya, just mute it. If you want anything, then please ask, unmute and then ask the question. Okay. Then which car you like more? Then selection list car ID. Then option value Volvo. Then option is Volvo. Then Saab option open well. These are the some car names. So we have to submit it and then submit or reset it. Okay, we have done this. Like selection name is car, ID is car, option value first is Volvo, then Saab, well, open well 1, Audi 1. These are the options. So we'll just put it here, save. We'll run it again. Okay, which car you like? This will be asking question. Then Saab you submit it, then it will submit like this only. Okay, you're getting? These are the options. You just submit it and select it. Reset. You're getting this point? All of you? Okay. I just again create some options here, like copy. Here, I just put it here. Option value null. Null. Okay, and just save it. Save. Again, refresh it. You will find the first value is null. Okay. You get this point. Submit it. Well, your form will be submitted.
This is your form. Method is post. I just type it here, get, and save it. Save. Okay. Here, when I was selecting a gate method, then it is showing an option car is equal to Volvo is we are selecting. Okay. If I select and open and submit it, then its car option is open. Okay, you're getting this point. When I was selecting a form like gate method, we are selecting, then HTML question mark cars is equal to open is showing in your taskbar. Okay, address bar here means any address, there is a name of that car. If I change it like post and save it as save, then it is encrypting your detail. It means it is not showing you detail about that which car you submitted. Okay, it is not showing. It is again showing Volvo submitted. It is not nothing showing you. Just delete it. Nothing is submitted. Okay, submitted but not getting show on your address bar. Your address bar. Okay, so this is the difference between post and gate methods. I think so. You get it well. So this we call the pull down menu. You can select a button also. You can select a text area also. So this will be the uh, okay. Okay, well, next select study about field set and legend. The field set element is used to group a related data in a form. Legend element defines the caption for the field set. For example, here is a subform is action underscore page dot php field set legend personalize. Okay, then label f name first name. Okay, then input type text id frame value John. These are the field set example. Just I will just show you an example of this. We'll create a new form, new file. Start with HTML, then head. Okay, then close tag of head. In that we'll use title, then title close. I'm giving a name for form for exam. Okay, and this is name. Then we'll start. Our head is close. Then we'll start with the body tag. I'm closing your body tag. Okay, here just pasting this form action. This I just save as HTML form.html form2.html. We'll select it form2.html. Save it. Okay, then it will showing you input type. Then input type here text area br input type here also. Hmm. Okay, this is we called or tag are showing in with the
Yes, sir. Okay, we'll start now. This is input type text ID F name. I will first show. I will show you how it will look like. Then we'll discuss about that. Let's open it. Website form 2 is there. This is your personalized S name, last name. This we call the personalized. Okay. You're getting this point. Okay, I will show you again what is use of this fill set and legend element. अभी यहाँ पे याद रखो fill set. It is used. आप क्या कर सकते हो इसमें to form group of element. इस पर्टिकुलर फॉर्म आपने अगर देखा होगा एग्जाम में तो कुछ फॉर्म जो होता है एक ग्रुप में होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक ग्रुप बना, देखो फॉर्म का एक फॉर्म का ग्रुप बना यहाँ पे दिखाई दिया, ये एक ग्रुप हो गया। ओके, इसे आप क्या बोलेंगे? पर्सनलाइज ग्रुप बोलो। गेटिंग दिस पॉइंट? ओके, एंड फिल सेट मीन्स लेजेंड पर्सनलाइज, उसका नाम दे दिया आपने। देन लेबल फॉर फर्स्ट नेम, देन लेबल आपका क्लोज हो गया। देन आपने उसको बी आर यूज किया, इनपुट टाइप टेक्स्ट आईडी, नेम एफ नेम, वैल्यू जॉन। ओके, इनपुट टाइप आपका ये आ गया। देन आप इसे और भी दे सकते हो, सेव इट। ओके, तो यहाँ पे जॉन आ गया इनपुट टाइप में। देन लास्ट नेम विल सेलेक्ट एज, अब यहाँ पे इनपुट टाइप कितना स्पेस है, इनपुट टाइप स्पेस। ओके, स्टार्ट सेव, देन अगेन सबमिटेड। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये फॉर्म रहेगा, पर्सनलाइज फॉर्म रहेगा, जहाँ पे आपको क्या कर सकते हैं, आप यूजर से पूछ सकते हो कि फिल सेट आपने दिया है कि नहीं, फॉर्मेशन किया है कि नहीं। तो ये आपका एक तरह का, मतलब आप बोल सकते हो कि ये जो है आपका एक ग्रुप फॉर्म हो सकता है, ठीक है। लेबल, एफ नेम, फर्स्ट नेम, पर्सनलाइज नेम। आपको समझ में आ रहा है क्या? हेलो प्रज्ञा, as you getting a point? हेलो हेलो हेलो। हाँ, आपके समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। ओके, गुड। तो देखो, पहले अपने क्या देखे थे, ये वाला देखे थे, सिलेक्शन लिस्ट वाला, ठीक है। इसमें सिलेक्शन लिस्ट में अपने, हेलो, हाँ बोलिए सर वो फिल सेट वाला फिर से बताओ। फिल सेट वाला ना, ओके। फिल सेट में क्या करना है आपको, फिल सेट के अंदर आप उसको नाम दे दो, पहले क्या नाम है आपका, ओके। देन लेबल फॉर एफ नेम, उसको आप नेम दे दो, और उसके बाद उसका फर्स्ट नेम रहेगा, इनपुट टाइप, देन उसका टेक्स्ट आईडी, एफ नेम, वैल्यू उसकी जॉन, आप वैल्यू भी दे रहे हो उसको। देन लेबल, एल नेम, इनपुट टाइप, सेव इट। ओके, कैप्शन देना है फिल सेट को, तो आप वहाँ पे लेजेंड यूज करोगे, और बाकी सब आपका जब इनपुट टाइप जैसा होता है फॉर्म के अंदर वैसे ही रहेगा। इज इट क्लियर? ओके, आपके समझ में आ रहा है प्रज्ञा? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इनपुट टाइप ऑफ एलिमेंट, तो उसके बाद देखो अपने को जो करना है, इनपुट टाइप एलिमेंट कलर is used for input field that should be contain color, like input type color, id favorable color, name favorable. Data is used for input field, date is used for input field, like should caption date, because input type like date and birth date, इस तरह से आप दे सकते हो, like date
आईडी बर्थडे, आप ऐसा कुछ भी दे सकते हो, या फिर इनपुट टाइप कलर भी दे सकते हो। तो इसे मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, फील्ड सेट में दिखा देता हूँ। यहाँ से देखते हैं इनपुट टाइप, यहाँ पे स्पेस है। ओके, अभी सही है। इसे मैं सेव कर लेता हूँ, सेव, और इसे रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ गया, डेट ऑफ बर्थ आपको डालना पड़ेगा, लाइक 02/10/1988। तो दिस वी कॉल द डेट ऑफ बर्थ, मतलब ये सबमिट हो जाएगा आपका फॉर्म इस तरह से। यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। तो सिंपल टास्क है। और उसके बाद फिर आपको करना क्या है, इनपुट टाइप डेट ले लिए, उसके बाद इनपुट टाइप आप कलर लेते हो, तो कलर भी आप दे सकते हो यहाँ पर। जस्ट सिंपली यहाँ पे लेता हूँ उसके नीचे में कलर, और यहाँ पे स्पेस आएगा इनपुट टाइप के बीच में। देखो मैं ये जो एडिटर यूज कर रहा हूँ ना, तो ये एडिटर मुझे बता रहा है कि आपके HTML टैग कौन से है। ओके, ये जो आपको कलर दिखाई दे रहा है पिंक कलर में, तो ये आपको मतलब एक तरह से हिंट देता है कि आप प्रॉपरली कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो ये अच्छा है एक तरह से। तो यहाँ पे देखो, ये कलर आप सेट कर सकते हो। ओके, और हो सके तो आप इसे BR दे दो नेक्स्ट लाइन में। ओके, सेव, तो ये कलर वाला आप सेलेक्ट कर सकते हो, सबमिट। इनपुट टाइप कलर, इनपुट द फील्ड और कलर कंटेनर भी आप बोल सकते हो उसके। तो मैं इसे कहाँ पे लेता हूँ, कलर कंटेनर को Ctrl+X, लेबल BR, यहाँ पे ले लेते हैं इसे, अगेन BR, सेव इट, सेव, सबमिट। तो ये कलर कंटेनर हो गया। देन नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट डेट, तो हो गया। देन इनपुट टाइप आप ईमेल भी ले सकते हो। क्या ले सकते हो, ईमेल ले सकते हो अगर किसी को देना है। और अदर इनपुट टाइप अगर आपको बोलना है, जैसा कि ईमेल आप लेते हो, इट्स यूज फॉर द इनपुट फील्ड, आप इसे इनपुट फील्ड भी यूज कर सकते हो, दैट इज शुड बी कंटेन एन ईमेल एड्रेस। देन फाइल, डिफाइन द फाइल्स सिलेक्शन लाइक ब्राउजर बटन और अपलोड के लिए। ओके, जैसे दोनों भी बता देता मैं आपको, ईमेल का भी। ओके, विल स्टार्ट नाउ। अब यहाँ पे आपने क्या किए थे, कंट्रोल, इसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ इनपुट टाइप, इनपुट, ओके, इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल। ओके, इसके आईडी देता हूँ मैं, इसे आईडी भी दे देंगे, आईडी इक्वल टू ईमेल। ओके, और इसे नेम भी अपन क्या दे देते हैं, माई ईमेल दे देते हैं, माई ईमेल। ईमेल, और वैल्यू देना है तो दे दो, या फिर जरूरत नहीं है उसकी वैल्यू। ओके, वैल्यू भी दे दो, चलो देखते हैं। तो वैल्यू के अंदर आपको वैल्यू भी आ जाएगी, वैल्यू इक्वल टू डबल कोट, कुछ वैल्यू दे दो, ऐसे में डॉट अर्शद, मेरा ईमेल आईडी देता हूँ मैं gmail.com। ओके, सेम सेव, देन इसे यहाँ पर रिफ्रेश कर लो। तो यहाँ पे क्या आ गया, डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि डायरेक्टली ईमेल आ गया यहाँ पर। ओके, समझ में आ रहा है आपके। अपन ने वैल्यू दे दी करके वैल्यू बाय डिफॉल्ट ले रहा है। अब अगर वैल्यू नहीं देते थे तो वैल्यू नहीं लेता था वो, ठीक है। देन इनपुट टाइप आप फाइल अपलोड का भी दे सकते हो, जैसा कि ये हो गया मेरा इनपुट टाइप। देन अगेन एक BR ब्रेक लाइन, देन इनपुट टाइप, इनपुट टाइप इक्वल टू
फाइल। ओके, तो यहाँ पे वो आपको क्या नाम फाइल का अपलोड करने का देगा, नेम इक्वल टू फाइल या फिर इमेज। ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे एक अपन क्या करेंगे, अपलोड योर इमेज। तो ये आपको इनपुट टाइप देगा इमेज, देन कॉमा स्पेस, उसका नेम हो गया, टाइप हो गया, देन उसे आप आईडी दे दो। आईडी देना बहुत जरूरी है, आईडी हमें दे देते हैं उसको इमेज। ओके, और यहाँ पे मेरा इनपुट टाइप में क्लोज कर देता हूँ। ओके, और इसे मैं सेव कर देता हूँ, सेव, और फिर से एक बार इसे रिफ्रेश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो अपलोड योर इमेज के लिए डायरेक्टली मुझे ऑप्शन दे रहा है कि फाइल सेलेक्ट करो आपकी करके। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ ये इमेज, और यहाँ पे बता दे रहा है कि महाराष्ट्र ट्यूशन वे अपलोडेड, और यहाँ पे फिर आपको एक अपलोड बटन देना पड़ेगा फिर उसके लिए। गेटिंग दिस पॉइंट। तो ये चीजें आपको बहुत जरूरी है। तो फॉर्म के अंदर ये सारी चीजें आपको मिलेंगी धीरे धीरे करके। फाइल हो गया, देन अदर एट्रीब्यूट दैट वी हैव टू यूज इन forms is like no validate. This is a boolean attribute when present it specifies that the form data should not be validated when submitted. नो वैलिडेशन अगर है तो आपको बता देगा कि आपके डेटा जो है वैलिडेशन नहीं हो गया प्रॉपरली, यस और नो की वैल्यू रहेगी इसकी। देन टारगेट दिस विल स्पेसिफाई वेयर टू ओपन द लिंक। ये लिंक आपको बताएगा कि कहाँ पे ओपन करना है। एट्रीब्यूट वैल्यू फॉर टारगेट दिस विल बी ब्लैंक, सेल्फ, पैरेंट, टॉप। ओके, तो जब आप इस तरह के एट्रीब्यूट टारगेट वाला जब आप यूज करोगे ना, इनपुट टाइप टारगेट, और उसका एट्रीब्यूट ऑफ वैल्यू दोगे ब्लैंक, तो वो न्यू डॉक्यूमेंट मतलब ब्लैंक विंडो ओपन करेगा। या फिर अगर सेल्फ करोगे तो उसी डॉक्यूमेंट में सेम फ्रेम में ओपन होगा। पैरेंट अगर ओपन करोगे तो ओपन इट इन पैरेंट फ्रेम। टॉप अगर ओपन करोगे तो इट ओपन इन फुल बॉडी ऑफ विंडो। अब ये कैसा होता है टारगेट के बारे में मैं बता देता हूँ। ओके, टारगेट के बारे में बता देता हूँ। इनपुट टाइप अपन लेंगे अभी टारगेट। ओके, विल स्टार्ट हियर। इनपुट टाइप इक्वल टू टारगेट। ओके, इसे नेम देते हैं, नेम इक्वल टू न्यू टैब देंगे, न्यू टैब। ओके, उसकी आईडी इक्वल टू न्यू टैब दे देते हैं, न्यू टैब। और इसको ओपन करने के लिए अपने पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, जैसा कि वैल्यू उसकी जो आपने दिया तो अंडरस्कोर ब्लैंक हो सकती है, ओके, अंडरस्कोर सेल्फ हो सकती है। तो इसकी वैल्यू में क्या करता हूँ, सबसे पहले विल गिव अ वैल्यू लाइक वैल्यू इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक। I just check it out, then we'll do this. Open a blank new window. Input type target बराबर है, और क्या प्रॉब्लम आ गया यहाँ पर। ओके, इसका मैं एग्जांपल आपको बताऊंगा। जब आपके पास कोई लिंक होगी ना, तब उस टाइम पे आप इसे बता सकते हो। सो यहाँ तक कि आप इसे ट्राई करो। ये जो टारगेट वाला जो है, ये जो है ना एक नई, जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। आप इस वेबसाइट पे आ जाइए। अब यहाँ पे जब मैं ये जो वेबसाइट है नाइलिट की, इसके ऊपर अगर मैं
एमटेक के पेज पे ओपन कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ, तो सेम नया पेज इसी विंडो में ओपन हो रहा है। उसमें आ रहे हैं ना, मतलब न्यू पेज ओपन हो रहा है इसी टैब में। ओके, और अगर मैं डिप्लोमा में जाता हूँ यहाँ पर, और डिप्लोमा में जाने के बाद अगर मैं यहाँ पे कुछ क्लिक करता हूँ, जैसा कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर पे क्लिक करता हूँ, तो एक न्यू टैब में ये सिलेबस ओपन हो रहा है। गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये न्यू टैब का कंसेप्ट है, आपके समझ में आ रहा है? देखो अभी सेकंड ईयर का अगर ओपन करूंगा तो सेकंड ईयर का सिलेबस आ जाएगा यहाँ पर। ओके, तो ये न्यू टैब में आ रहा है। क्या हो रहा है? न्यू टैब में आ रहा है। ये टैब एज इट इज रह रहा है, लेकिन जब मैं किसी एक पेज को, मतलब यहाँ पे अगर कोई मैं बीटेक का पेज ओपन कर रहा हूँ तो सेम टैग में वहाँ पे ओपन हो रहा है। तो ये वाला जो टैग है आपका, वो इसीलिए यूज करते हैं। जो आपके लिंक है, वो फॉर्म के लिंक कहाँ पे ओपन होना चाहिए, उसी टैग में होना चाहिए, उसी विंडो में होना चाहिए, या फिर पैरेंट फ्रेम में होना चाहिए, या फिर टॉप पे होना चाहिए, या फिर न्यू विंडो में होना चाहिए। ये उसका टाइप होता है, ठीक है। अब हैंडलिंग गेट फॉर्म्स, तो मैंने आपको बताया था कि गेट फॉर्म के अंदर क्या होता है कि आपका पूरा एप्लीकेशन इस तरह से आता है, जो दिखाई दे रहा है ना आपको, पूरा उसके अंदर लिख के आता है। when the server process the URL, it invoke the application name, डम गेट स्टोर द डायरेक्टरी नेम, मतलब ये पूरा डेटा जो है आपका डायरेक्टरी से उठा लेता है फॉर्म के अंदर। ओके, और पोस्ट मेथड के अंदर ये क्या होता है, डेटा इज सेंट इन फॉर्मेट ऑफ नेम और कुछ, या फिर आप इसे बोल सकते हैं कि नो यूआरएल इज सेंट। डेटा डायरेक्टली कॉपी हो जाता है आपका जहां पे आपका फॉर्म है वहां से। लेकिन जब आप गेट मेथड यूज करते हो तो गेट मेथड के अंदर पूरा, मतलब आपका नाम वो सब यहाँ पे दिखाई देता है। जैसा मैं यहाँ पे आपको बताया था कि जब आप फॉर्म यूज करोगे तो यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि आपने क्या यूज किया, यहाँ पे गेट मेथड यूज किया था, सॉरी पोस्ट मेथड यूज किया था। ओके, इस टाइम पे इस फॉर्म में हमने पोस्ट मेथड यूज किया था, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले। तो आप एक बार अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो रिमाइंड करके देख लेंगे, तो आपके समझ में आ जाएगा। इज इट क्लियर? सो टुडे विल स्टॉप हियर। मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि हमने आज मतलब 2 दिन में क्या देखा। फॉर्म के अंदर अपन ने फॉर्म के अंदर जो मेथड होते हैं वो देखे। उसके बाद फॉर्म की जो मतलब गेट मेथड है, पोस्ट मेथड है, देन एक्शन है, इंक्रिप्शन टाइप नेम है, टैग है। तो फॉर्म कैसे बनाते हैं आप वो देखे, इनपुट टाइप देखे, उसके बहुत सारे इनपुट टाइप्स होते हैं, जैसा कि इनपुट टाइप टेक्स्ट होता है, इनपुट टाइप टेक्स्ट एरिया होता है, इनपुट टाइप बटन होता है, इनपुट टाइप रेडियो बटन होता है, इनपुट टाइप चेक बॉक्स होता है। तो ये सारी चीजें आपने देखी है। और इनपुट टाइप पासवर्ड होता है, इनपुट टाइप सबमिट होता है, इनपुट टाइप रिसेट होता है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने विथ प्रैक्टिकली एग्जांपल देखे उसको, और सिलेक्शन लिस्ट भी देखे, देन फील्ड सेट और लेजेंड भी देखे अपन ने। इनपुट टाइप ऑफ कलर कैसे होता है, डेट कैसे आप दे सकते हैं वो भी देखे। अदर एट्रीब्यूट लाइक टारगेट और ब्लैंक टारगेट, ये आपको मैं जब मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा ना तब आपको उसके अंदर बता दूंगा विद द एग्जांपल। लाइक जब अपन मल्टीपल फॉर्म डिजाइन करेंगे ना, उस टाइम पे मैं आपको बताएगा कि न्यू विंडो कैसे आप ओपन कर सकते हो न्यू टैब में। सो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर लेना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इज एनी क्वेश्चन? हेलो, इज एनी डाउट? नो सर। ओके प्रज्ञा, फिर स्टॉप करते हैं यहाँ पर। यस सर।